So in today's class, we'll discuss about work done by many forces. In the previous lectures, we have discussed about the work done by gravitation force, work done by normal force, work done by variable force. And we know very well that what is a variable force. Okay, I have discussed about the variable forces. What are the variable forces? You know very well, I think. Okay. Yes, sir. So in today's class, we are going to discuss about the work done by tension force. Work done by tension force. In today's class, we are going to discuss about the work done by tension force. So at the first, you should know what is tension force. So tell me about the tension force. What is tension force? Okay, listen. At the first, you are given a system, something like this. I am giving a system. Wait a minute. Okay, sir. Okay. So this is something like a system. This is a string and one block of some mass, small m, is connected to the string. Okay. This is ceiling. Yes. And this is nothing but the string. This is nothing but the string. Okay. And a block of mass, small m, is connected with the string. So now we have to find the tension force in the string. So can you find the tension force in the string in this question? Yes, sir. The force which is being given by the mass, we can find it, sir. So what is the value of tension force in this question? I'm not getting, sir. At the first, you should have to make the free body diagram of the block. Okay. So Okay, sir. at the first, you should have to make the free body diagram of the block. Consider that we are having a block of some mass, small m. Okay. One force, that is weight, will act vertically downward, mg. Weight is nothing but the Yes, mg. sir. Okay. The product of mass and gravitational acceleration. And at this point of contact, consider that this point is A. Okay. So at point A, tension force will act. Okay. Now we should know about the direction of tension force also. What is the direction of tension force? I am going to tell about the direction of tension force. Tension force. Direction of tension force. Okay. So what is the direction of tension force? Along the rope. Along the rope. Along the rope, away the object. Away the object. Along the rope, away the object. Okay. अब आप यहाँ इस डायग्राम में देखो गौर से, ये जो एफबीडी बना हुआ है यहाँ पे अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है. The एफबीडी इज नॉट कंप्लीटेड येट. अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा एफबीडी. अब यहाँ पे रोप तो आप देख सकते हो ना, ऊपर की डायरेक्शन में है. रोप ऊपर है, नीचे नहीं है. तो यहाँ पे जो भी टेंशन फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा. Along the rope. मैं क्या लिख रहा हूँ? Along the rope. I am writing here along the rope. रोप के along लग रहा है. ठीक है. रोप जो भी है उसके along यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है. तो टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ. तो यहाँ पे this block actually is not moving. We can say that the acceleration of the block in the y direction as well in x direction is also zero. Acceleration of the block in both the direction is zero. So we can say that the net force act on the block will be equal to zero. If the acceleration of any particle is zero, so we can say that the force applied on the block is also zero. We can say that, na? Sir. Okay. By Newton's second law, F equal to ma. By Newton's second law, F equal to ma, we can conclude that if acceleration is zero, then F is also equal to zero. So in this diagram, we are seeing that the block is not moving anywhere. The block is hanging only. Okay. So if the block is not moving, we can say that acceleration of the block in this diagram is equal to zero. So the net force act on the block will be equal to zero. Okay. And Yes, how sir. is the net force acting on the block is zero? Only when tension force is equal to mg. Tension force is equal to mg. जब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स की इक्वल होगा तभी तो टेंशन नेट फोर्स जीरो होगा, है ना? मींस Yes, हम sir. इस तरह से ये बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लगा मान लो 10 न्यूटन का फोर्स और यहाँ पे भी लग गया 10 न्यूटन का फोर्स,
तो हम बोल सकते हैं ना कि नेट फोर्स कितना है, 0 0. हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता कि यहाँ लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन है और इधर लगने वाला फोर्स मान लो 8 न्यूटन है, तो अब यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होता, 2 न्यूटन हो जाता है ना। Yes, sir. और अगर इसमें यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स हो जाता तो ये ब्लॉक फिर मूव करता, ये ब्लॉक बड़े फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता। 10 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट टू राइट लग रहा है तो उसी डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव करता। और कितने फोर्स से मूव करता, 2 न्यूटन के फोर्स से ये मूव करता। ऐसी तो होता। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इस पे टेंशन ऊपर की तरफ लगा है, mg जो वेट होता है उसका ऑब्जेक्ट का वो नीचे की तरफ लगा है, तो T इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं mg। इज इट ओके? Yes, sir. Okay, so take the screenshot. Okay, take the screenshot of this slide. Take the screenshot of this slide. Done, sir. Done? Okay, I'm Yes, erasing sir. everything. I'm erasing everything in this slide. Okay, sir. Okay, now we have to find the tension force, sorry, we have to find the work done by tension force. So I'm giving a question to you. We have a question. Consider that this is ceiling, nothing else, ceiling. Okay, now we Okay, have a sir. pulley, we have a pulley something like this. Okay, and this pulley is connected to the ceiling something like this. Now the two blocks are also connected with the pulley something like this. I'm showing you, wait a minute. Yeah, okay, now we have two blocks of some masses. One block is this and another block is this. So this is our final diagram. Okay, now this block is A and this block is B. Okay, and one more thing is given in the question. The mass of block A is equal to 2 kilogram and the mass of block B is equal to 4 kilogram. Okay, and यहाँ पे आप एक चीज को और नोटिस करिएगा कि ऑब्वियस सी बात है कि बी वाले ब्लॉक का मास ज्यादा है तो बी वाला ब्लॉक नीचे आएगा। ये तो अंडरस्टूड है, इसमें क्या समझाना है। जब बी वाला ब्लॉक भारी है, उसका मास ज्यादा है, तो वो नीचे आएगा। तो ये बी वाला ब्लॉक जो है ना वो मैक्सिमम कितना नीचे आ सकता है, 2 मीटर ओनली। ये नीचे की तरफ कितना आ सकता है, सिर्फ 2 मीटर नीचे आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, सो you have to find the work done. You have to find the work done by tension force. You have to find the work done by tension force. First part on A, second part on B. So this is our question. So at the first, you should calculate the tension force in this diagram. In the previous diagram, we were seeing that the block is not moving, so we equate the two forces, T is equal to mg. But in this diagram, we are seeing that the blocks are moving. The blocks are moving with some acceleration. B block, the acceleration of block B will be in the downward direction, and the acceleration of block A will be in the upward direction, as shown in the figure. Okay, because we know very well that the mass of B is greater than the mass of A. Okay, so we can say that the block B will move towards downward. Are you getting me or not? Yes, sir. Okay, so at the first you should have to find the tension force in the string. After that you can find the work done by tension force. Are you getting me? What am I saying? Yes, sir. हाँ, आपको सबसे पहले यहाँ पे टेंशन फोर्स निकालना होगा, तभी तो आप टेंशन फोर्स की वजह से वर्क निकाल पाओगे। आपको टेंशन फोर्स ही नहीं पता होगा, आप वर्क कैसे निकालोगे? वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, Fs cos थीटा होता है। ये क्या हो रहा है? वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, Fs cos थीटा होता है। ये मैं प्रीवियस, अरे ये क्या हो रहा है, ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि ये वर्क का फॉर्मूला होता है। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हाट इज थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। नॉट ओनली अप्लाइड फोर्स,
any type of force. Okay, the theta is the angle between the force and displacement. Okay, so at the first we have to find the tension force. Now tell me, how will we find the tension force in this diagram? Sir, instead of putting G, we'll take up acceleration, sir. What I was saying? So instead of taking gravity here, we can take the normal acceleration which has been given. No, acceleration is also not given, that is unknown. Acceleration is not given. A is only the value of acceleration, means notation of acceleration. We can denote acceleration by A. We don't know the value of acceleration in this question. Yes, sir. And we are seeing that the block are hanging and the block are moving in gravity, moving in air. So gravity will also act. How can you ignore it? आप इग्नोर कैसे कर सकते हो ग्रेविटी को? वो तो एक्ट करेगा, बिकॉज द पार्टिकल आर मूविंग इन एयर. पार्टिकल हवा में मूव कर रहे हैं. जैसे पुली लटका हुआ, आपकी छत से पुली लटका है, उसमें दो ब्लॉक कनेक्टेड है. अब वो दोनों ब्लॉक अगर ऐसे चल रहा है, एक ब्लॉक नीचे आ रहा है, एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटी तो लग ही रहा ना उनमें. यस सर. तो अब आप कैसे फाइंड करेंगे? We should add gravity and the normal acceleration, sir. ओके, आपने मान लो ग्रेविटी और एक्सेलरेशन को ऐड कर दिया. अब एक्सेलरेशन है कितना, कहाँ पता है? वही पता नहीं. हाँ, नहीं पता ना हमको. तो अब वही हमें फाइंड करना है, वही हमें फाइंड करना है. ठीक है, अब आप सुनना मेरी बात बहुत गौर से. ये हमारे पास है ब्लॉक बी. अच्छा, आप मुझे ये बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप शुरुआत से क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं ना, वो शुरुआत मतलब फ्री बॉडी डायग्राम है. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ये काम करता है ना. तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसका मतलब आपका क्लियर नहीं है. अगर होता इतना अच्छा क्लियर तो आप बता देते. क्लियर नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ एग्जाम है इस वजह से है? No sir, actually they started it late everywhere, sir. The tuition that I went before too, they were also like rushing it up, so I didn't really get time to finish everything properly, sir. Okay, no problem. अब जितना मेरे से पॉसिबल होगा उतना मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँ. सारी चीजें बता पाना तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये ब्लॉक बी है, इसका एबीडी हमें बनाना है. तो सबसे पहले तो इसका वेट हम लोगों ने बना दिया. इसका वेट हो जाएगा नीचे की तरफ 4g और ऊपर की तरफ लग जाएगा यहाँ पे टेंशन फोर्स, ठीक है? और हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है. तो अब हमें ये पता है कि इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है तो ऑब्वियस सी बात है कि 4g जो फोर्स है वो टेंशन से ज्यादा होगा, तभी तो नीचे आ रहा है ब्लॉक, है ना? यस सर. भाई इस पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं. ऊपर लग रहा है टेंशन फोर्स, नीचे लग रहा है 4g. तो 4g भी तो एक तरह का फोर्स है ना. 4g इज व्हाट? 4g इज वेट, एंड वेट इज अ फोर्स exerted by earth on the any object. Okay, so acceleration अगर नीचे की तरफ है तो इसका मतलब है कि इस पे लगने वाला जो 4g फोर्स है वो नीचे की तरफ वो ज्यादा है with respect to tension. तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4g माइनस का t is equal to 4 into a. ऐसे लिख सकते हैं. ये कुछ नहीं है स्पेशल, कुछ नहीं है. F equal to ma है. ये मैंने कुछ स्पेशल नहीं लिखा, ये मैंने सिर्फ F equal to ma ही लिखा है. ये देख लो आप, F equal to ma ही लिखा है. ये कुछ स्पेशल नहीं है. आप सोच रहे हो कि सर ये क्या लिख दिया, ठीक है? F equal to ma ही लिखा है. F कितना है? नेट नीचे 4g ऊपर टेंशन, माइनस तो करेंगे ना. जैसे पिछले अभी मैंने जो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसमें आपने देखा था कि मैंने यहाँ पे दो ब्लॉक बनाए थे नीचे की तरफ. एक तरफ से लग रहा था 10 न्यूटन का फोर्स, एक तरफ से लग रहा था 8 न्यूटन का फोर्स. तो नेट फोर्स कितना हुआ था? 10 माइनस 8. हाँ, अब हम बिल्कुल सेम टू सेम बनाएंगे ब्लॉक ए का एबीडी. तो ये हमारे सामने हो गया ब्लॉक नंबर ए. तो ब्लॉक ए का नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? 2g, और ऊपर की तरफ इसमें क्या आ जाएगा? टेंशन. टेंशन सेम क्यों है? पूरी स्ट्रिंग में देखो, यहाँ पे भी टी लिखा है, यहाँ पे भी टी लिखा है, T1 T2 नहीं लिखा है. क्यों? क्योंकि पूरी स्ट्रिंग सेम है ना. एक ही तो स्ट्रिंग है जो पुली के ऊपर से होके गुजर रही है. यस सर. जब स्ट्रिंग एक ही है तो एक स्ट्रिंग में कितने टेंशन? एक ही तो टेंशन होगा. अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन फोर्स थोड़ी हो जाएंगे स्ट्रिंग में, है ना? तो स्ट्रिंग में एक ही टेंशन है. अच्छा, ब्लॉक ए जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है. अब आप मुझे बताइए इसका इक्वेशन क्या बनेगा? बना लोगे मेरे ख्याल से? बना के बताओ.
इसका इक्वेशन ब्लॉक ए के लिए क्या बनाएंगे बताइए? सर 2g minus t is equal to a 2a. हाँ, बस यही 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 गलती हो गई ना। अब 2g माइनस टी क्यों किया? 2g माइनस टी क्यों किया है? 2g बड़ा है क्या टी से? अगर 2g बड़ा होता तो ब्लॉक नीचे ना आ रहा होता। Yes sir. ऊपर बताइए कि यहाँ पे कौन सा फोर्स बड़ा है, टेंशन या 2g? Tension sir. टेंशन। तो इक्वेशन क्या बनाएंगे फिर हम? हाँ हाँ बोलो। Sir, I'm not sure sir. कोई दिक्कत नहीं है, तब भी बताओ। अरे Sir, सीधी is सी it बात है, दो a फोर्स लगाए, minus 2g is equal to 2a? बस सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत थी? सही है बच्चा। ऐसा होता है कभी कभी कि हमें चीजें आती तो है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम कर नहीं पाते हैं चीजों। तो Yes यहाँ sir. पे आप जब इन दोनों को ऐड करोगे ना तो ये टेंशन से टेंशन कैंसिल हो गया। टेंशन है इतना तो टेंशन कैंसिल कर दिया हमने, देखो टेंशन खत्म ही हो गया। 4g माइनस 2g कितना हो जाएगा? सिर्फ 2g बचेगा और ये दोनों तो ऐड हो जाएगा। 4a और 2a कितना हो जाएगा? 6a। तो यहाँ से ये कैंसिल करा आपने 3 बार। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपके सामने? g/3 आया। अब जो आप सोच रहे थे एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन सर एक्सेलरेशन, अब आई उसकी वैल्यू, देखो अब आ गई उसकी वैल्यू आपके सामने। अब आपको जो उचित लगे आप उससे के साथ कर लो। एक्सेलरेशन आ गया अब आपके पास। और ये जो एक्सेलरेशन आया ये हमारे काम का नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया है। अब इसी एक्सेलरेशन को उठा करके आप यहाँ पे रख दो, अब आपका टेंशन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा टेंशन बताओ? अब t माइनस 2g इज इक्वल टू 2 इंटू ए, और a का मतलब है g/3। तो यहाँ से जो टेंशन आएगा वो आपका कितना हो जाएगा? ये 2g उधर जाके ऐड हो जाएगा ना, तो 3 2 6 to 8, शायद 8g/3 आई थिंक। देखो आप कैलकुलेट करके इसको, 8g/3 ही आएगा शायद ना। Yes sir. हाँ अरे भाई सीधा सा है ना कि ये 2g/3 है और प्लस का 2g है। एलसीएम आप ले लोगे तो ये 2g ऐसे ही रहेगा और 3 2 6g हो Yes जाएगा, sir. तो 8g/3 टेंशन फोर्स आ चुका है। अब हमें इस क्वेश्चन में But बैक टू पवेलियन आ जाओ। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स अब आया है, अब आया है टेंशन फोर्स, अब हम निकालेंगे इसकी वजह से बात। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आज मेरे पास स्लाइड नहीं है चेंज करने के लिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा फिर मैं okay, इरेज। done sir. ओके ठीक है, तो अब मैं कुछ पोर्शन ही इसमें से हटाऊंगा, सारा पोर्शन मैं नहीं हटा सकता क्योंकि फिर तो क्वेश्चन ही गायब हो जाएगा, फिर सॉल्व किसको करेंगे हम। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा। हाँ ये देखो ठीक है, मैंने उतना ही रखा बस जितना हमारे काम का है। टेंशन फोर्स तो हम फाइंड कर ही चुके ना, अब हमें क्या है, पूरा कैलकुलेशन करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, अब तो हो गया। तो टेंशन फोर्स आप यहाँ से फाइंड कर चुके हो। टेंशन फोर्स हमारे सामने कितना आ गया है? 8g/3, ठीक है। अब आपको ब्लॉक ए पे और ब्लॉक बी पे वर्क निकालना है। तो सबसे पहले आप ब्लॉक ए की बात कर लो। फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं ऑन ब्लॉक ए। हम ब्लॉक ए की बात करते हैं। तो ब्लॉक ए पे अब आप मुझे बताइए कि ब्लॉक ए पे टेंशन फोर्स की डायरेक्शन क्या है? So down upward sir. बिल्कुल सही। तो ब्लॉक ए पे ये देखो मैंने येलो कलर से बनाया, क्या आपको शो हो रहा है ये? Yes sir. ये मैंने येलो कलर से बनाया इसीलिए कि ब्लैक के ऊपर वो येलो अलग से हमें दिखाई देगा। तो ये येलो कलर से मैंने बनाया हुआ है इसीलिए कि यहाँ पे टेंशन फोर्स जो लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। ये जो टेंशन फोर्स इस पे लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। और ब्लॉक ए का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? Sir upwards. बिल्कुल। तो अब आप मुझे बता दो कि थीटा कितना हो गया? 90 sir. 90 कैसे हो गया? फोर्स ऊपर है, एक्सेलरेशन सॉरी फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो 90 कहां से हो गया? Okay, it will be 0 sir. हाँ, तो 0 डिग्री थीटा यहाँ पे हो चुका है। तो अब वर्क हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fs cos 0। F कितना है? टेंशन फोर्स है, तो 8g/3। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब देखो जितना बी ब्लॉक नीचे आएगा ऑब्वियस सी बात है उतना ही ए ब्लॉक ऊपर जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग तो एक ही है, ऐसी तो होगा।
तो ए वाला ब्लॉक ऊपर कितना जाएगा जितना बी वाला ब्लॉक नीचे आएगा, यानी 2 मीटर, और कॉस थीटा 2 मीटर 1 हो गया वो, तो ये हमारा 1 फाइनल कितना हो जाएगा 160/3 न्यूटन, सॉरी जूल, न्यूटन तो वर्क फोर्स का होता है। ये आंसर आ चुका है। जी का वैल्यू रख दिया मैंने 10, 8 2 16 इंटू जी मतलब 10, 160/3, ये आ गया आंसर। कोई डाउट? ओके सर। नो सर। सिंपल है, समझ आ गया ना, कंसेप्ट क्लियर हो पा रहा है? यस सर। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ब्लॉक बी की। सेकंड पार्ट है हमारा कि हमें ब्लॉक बी पे निकालना है, तो ऑन ब्लॉक बी इसकी बात करते हैं। तो ब्लॉक बी पे अगर हमको यहाँ पे निकालना है, तो ब्लॉक बी आप देखो, अब मुझे बताओ कि ब्लॉक बी पे टेंशन फोर्स जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? ब्लॉक बी पे टेंशन फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है, बताइए आप मुझे। सर आप अपवर्ड, ऑब्वियसली अपवर्ड लग रहा है। ब्लॉक बी पे जो टेंशन फोर्स है वो अपवर्ड लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में ब्लॉक बी पे टेंशन फोर्स लग रहा है। लेकिन ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ की तरफ हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? नीचे सर। नीचे आ रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 180। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। तो यहाँ पे थीटा हमारे सामने आ चुका है 180 डिग्री। अब जब ये थीटा 180 हो चुका है हमारे सामने, तो अब वर्क हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? एफ एस कॉस थीटा, कॉस 180, ठीक है। एफ कितना है? अरे एफ तो वही है ना जो यस टेंशन है, टेंशन तो सेम है ना सब पे, यानी टेंशन तो हमारा 8g/3 ही है। टेंशन फोर्स थोड़ी बदल रहा है, 8g/3। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2, और cos 180 क्या होता है -1। तो फाइनली यहाँ हमारा आंसर कितना आएगा 160/3 जूल, माइनस का आएगा। बताइए। ओके सर। तो इससे हम लोगों ने सीखा ये है कि आपने यहाँ पे वर्क निकाला था, ये हमारा आया था पॉजिटिव, और यहाँ पे जो वर्क आया है ये आया हमारा नेगेटिव। अगर टेंशन फोर्स की वजह से टोटल वर्क आपको निकालना होता, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। क्यों? एक प्लस है एक माइनस है, तो टोटल आप ऐड करोगे ना निकालने के लिए, तो ऐड जब आप इसको करोगे तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? तो हम क्या लिख सकते हैं? यस नेट सर। वर्क डन, हम लिख सकते हैं नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज ऑलवेज 0। इस चीज को आप याद रखो, बस इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। ये हमारे काम की चीज बन चुकी है, काम का स्टेटमेंट है ये हमारे। बताओ, याद रहेगा? यस सर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। आई एम erasing everything after you're taking the screenshot. आंसर। Okay, so any doubt in this slide? In this page? नो सर। Okay. अब हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय क्या कहते हैं वेरिएबल फोर्स, कई सारे तरह से हम लोग वर्क यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन अभी तक नहीं किया था, अब आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, इसको आप याद रखिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा जरा, एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो अब आपको यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्या आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? डू यू नो अबाउट फ्रिक्शन फोर्स? व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली? यस सर, अ लिटिल बिट सर। बताइए क्या? The force which is being inflicted on the solid surface which is on rest. इससे आपका मीनिंग क्लियर कहाँ हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स का मीनिंग इज नॉट क्लियर एट, है ना। मतलब Yes फ्रिक्शन sir. फोर्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन एक सिंपल सा एक फोर्स है, मतलब सिंपल का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स। जब भी आपको सुनने में आ जाए फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो आप सीधा समझ जाओगे अपोजिशन हो रहा होगा मोशन का, रिलेटिव मोशन का।
अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मान लो कि स्मॉल m मास का ब्लॉक है और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, और ऑब्वियसली ये ग्राउंड कैसा है, यहाँ पे रफ है, ये ग्राउंड यहाँ पे कैसा है, रफ है, रफ सरफेस है। तो अब जब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है तो इसमें जो भी फ्रिक्शन लगेगा वो कहाँ की तरफ लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जो भी फ्रिक्शन इसमें लगेगा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि वो मोशन का अपोज करेगा। अब ये ब्लॉक जा कहाँ रहा था, राइट में जा रहा था, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहाँ लग जाएगा, लेफ्ट में। इस पे जो फ्रिक्शन लग जाएगा वो कहाँ लग जाएगा, लेफ्ट साइड में। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें जो भी फ्रिक्शन Yes, लग sir. जाएगा वो लेफ्ट में लग जाएगा, ठीक है। तो जो भी फ्रिक्शन फोर्स हो गया वो लग गया लेफ्ट में। ये लो स्मॉल एफ, फ्रिक्शन फोर्स को एक्चुअली हम लोग स्मॉल एफ से शो करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग स्मॉल एफ से ही शो करते हैं, ठीक है। Okay, sir. फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग स्मॉल एफ से शो करते हैं। अप्लाइड फोर्स जो होता है उसको कैपिटल एफ से शो किया जाता है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको हम लोग स्मॉल एफ से शो करते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई होगी? फ्रिक्शन Yes, फोर्स sir. का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन, म्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू का मतलब क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू को हम लोग क्या कह देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू का मतलब हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। गिवन होता है क्वेश्चन में, परेशान ना हो ना, गिवन होता है, ठीक है। नहीं गिवन Okay, होगा sir. करना होगा तो अदर चीजें गिवन होगी, उसमें क्या है ना। तो एन का मतलब Yes. यहाँ पे क्या होता है, एन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एन का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स। एन का मतलब बच्चे यहाँ पे क्या हो जाता है, रितिका नाम है आपका, हाँ, नॉर्मल फोर्स। Yes, sir. तो अगर यहाँ पे हमें नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना है, मतलब नॉर्मल फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है, मान लो इस डायग्राम, ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब आपको पता है इसका एफबीडी हमें बनाना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं ना, इसका एफबीडी बना लेते हैं। इसका एफबीडी हम लोग बना लेते हैं। ये ब्लॉक हम लोगों ने अलग से बना दिया, ये ब्लॉक हम लोगों ने इसको अलग से बना दिया। एफबीडी का मतलब आपको मैं डिटेल में बता दूंगा अभी क्या होता है, अगर नहीं पता है Yes. तो यहाँ पे नीचे की तरफ तो लग जाएगा इसका mg, और ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ जो लगेगा वो क्या लग जाएगा, नॉर्मल फोर्स ऑब्वियसली। तो नीचे की तरफ इसमें कौन सा फोर्स लग चुका है, mg, और ऊपर की तरफ इसमें क्या लग चुका है, नॉर्मल। जैसे अभी हम लोगों ने किया था ना टेंशन फोर्स में, वहां पे ऊपर क्या लग रहा था, टेंशन लग रहा था। क्यों? क्योंकि Tension. स्ट्रिंग थी। यहाँ स्ट्रिंग थोड़ी है, यहाँ कोई स्ट्रिंग नहीं है। यहाँ तो ये ब्लॉक जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, ग्राउंड के पे ऊपर रखा हुआ है। Yes, तो sir. उसको नॉर्मल लगेगा। और जो भी नॉर्मल फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। क्यों हो जाएगा इक्वल? क्योंकि ब्लॉक मूव थोड़ी कर रहा है, ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा। राइट में तो जा रहा है लेकिन ऊपर नीचे मोशन नहीं हो रहा ब्लॉक का। तो ऊपर और नीचे वाले फोर्स इक्वल होंगे तभी तो ऊपर नीचे मोशन नहीं हो रहा। सीधी सी बात है, मतलब थोड़ा फील आना चाहिए चीजों का, अब तो आ जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि ब्लॉक ऊपर भाई देखो, ये ब्लॉक ऐसे रखा है, मान लो पेन रखा हुआ हाथ पे, अब पेन को मैं इधर ले जा रहा हूँ तो ये इधर जा रहा है ना। अब ऊपर नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इसके ऊपर नीचे जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है। Okay, sir. Got it. मान लो नॉर्मल ज्यादा होता तो ये उठ जाता ना ऊपर, Yes, sir. mg ज्यादा होता तो ये जमीन में घुस जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो सिर्फ ब्लॉक जमीन पे स्लाइड होके चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर है, इक्वल है, Good. ठीक है। Okay, sir. हाँ, तो नॉर्मल और mg कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल इक्वल टू mg, दिस इज नॉट द फॉर्मूला। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, याद रखना, ये कोई फॉर्मूला नहीं आ गया। नहीं तो आप हमेशा सोचो नॉर्मल इक्वल टू mg होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्मल अलग अलग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के Okay, sir. कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट रखा कैसा है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पे नॉर्मल की वैल्यू अलग अलग आएगी। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एक और डायग्राम बना के बताता Okay, sir. Done, sir. हूं। डन, ओके। अब आप मेरी बात को सुनना, मैं आपको यहाँ पे एक और डायग्राम डेमो देके बताता हूँ कि कैसे ये अलग अलग हो सकता है। ये देखो, ये मान लो कोई एक वेज है, इंक्लाइन प्लेन। वेज मतलब इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। यहाँ पे ये एंगल मान लो थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। अब आप मानो यहाँ पे कोई एक ब्लॉक ये रखा हुआ है इस तरह से,
This is a block of mass small m. Okay. Yes, sir. अब आप मुझे बताइए, इसमें जो वेट लग रहा होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही तो लगेगा। वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, इसके साथ तो थोड़ी ना कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, ये तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। वेट की डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती कॉन्फ़िगरेशन पे, है ना। वेट Okay, का sir. Yes, sir. mg का जो डायरेक्शन है वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट कैसा रखा है। ऑब्जेक्ट कैसा भी रखा हो, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा लगेगा, हमेशा। Okay, sir. ये देखो लग गया वेट कितना mg, ये वेट हमारा mg हो, ठीक है। Yes, अब sir. सुनो, अब आगे की बात सुनिए आप। अब इस mg के हम लोग करेंगे कंपोनेंट। एक कंपोनेंट ये आएगा और इस mg का एक, अरे ये क्या हो रहा है, ये फीचर इसके कुछ बदल गए हैं, क्या कहते हैं ये जूम के जो है, और Yes. एक कंपोनेंट इसका ये आएगा यहाँ पे। ये आ गए दो कंपोनेंट हमारे सामने। अब आप सिंपल सी मैथमेटिक्स यूज करो, सिंपल सा ज्योमेट्री आपको यूज करना है, ज्यादा कुछ स्पेशल कठिन नहीं है, सिंपल है सब कुछ। देखो कैसे, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितने का है, 90 का है। 90. ये एंगल कितना हो जाएगा, कितना होगा? हम्म कितना होगा? अरे ट्रायंगल के कितने होते हैं एडिशन? Okay, okay. In that way, okay, sir. Theta plus 90 divided by sorry, subtracted by आराम से 180. आराम से आराम से, अरे आराम से आराम से आराम से बताओ Okay, एकदम। sir. Theta नहीं, plus 90 minus 180. हाँ तो करो ना, कितना आएगा ये, सॉल्व करो ना इसको, Sir, कितना theta आएगा का ये। value. थीटा थीटा रहने दो ना, 90 180 को सेटल करो ना, थीटा थीटा रहने दो। Okay, okay. हम्म Theta minus 90, sir. अरे थीटा माइनस 90 नहीं आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा ना। ये क्या हो गया, एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट रुकिएगा आप, ठीक है। ये लाइट Okay, sir. एक सेकंड रुको जरा। हाँ, तो मैं आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये एंगल 90 का है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा नहीं बचेगा? Yes, sir. है, मान लो ये एंगल एक्स है, चलो लो, और इससे आसान क्या समझाऊं मैं, एक्स प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अब इस 90 को उधर ले जाओ, इस थीटा को उधर ले जाओ, तो एक्स कितना आएगा, 90 माइनस थीटा ही तो आएगा, है। तो ये 90 माइनस थीटा ही तो लिखा है मैंने, बताओ Yes, sir. समझ में आई बात? Got it. हाँ, हाँ, sir. अब अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल कितना है पूरा, 90. 90, बिल्कुल सही। अब ये एंगल 90 है और ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, तो अब ये एंगल कितना बचेगा, कितना बचा? हम्म बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। Sir, हम्म sir, is it theta? देखो, ये हमारा कितना है, 90 माइनस थीटा है, Yes, sir. ये पूरा 90 का है, तो ये एंगल कितना होगा, है? Minus theta, sir. अरे माइनस थीटा क्यों होगा, माइनस थीटा कैसे हो जाएगा, एंगल माइनस थीटा कैसे हो जाएगा मतलब? Okay, अरे plus theta. Plus theta plus. आप इस पूरे 90 में से इसको माइनस कर दो तो ये बचेगा ना, 90 में से आप इसको माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो ये 90 90 कैंसिल हो गया, बचा है थीटा। Plus theta. Yes, sir. थीटा आएगा, ये एंगल हमारा कितना Yes, आएगा, sir. सिंपल है। इसमें क्या था मतलब है क्या था इसमें, इसमें क्या दिक्कत आ रही थी तुमको, सिंपल सी चीज है ये तो, अभी आ गई ना समझ? Yes, sir. लास्ट क्लास में मैंने आपको कंपोनेंट करना सिखाए थे, याद है?
बिल्कुल याद होना चाहिए। कंपोनेंट Yes, मैंने sir. कहे थे, Right. कौन कौन से कंपोनेंट आए थे? कॉस आया था, एक साइन आया था, याद है? Oh, भूल गए yes, क्या? sir. Yes, no, sir. I remember, sir. अगर ये एंगल थीटा है, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बताओ? Um, F S cos theta, sir. हाँ, एफ कॉस थीटा ओनली। एस कहाँ से आ रहा है? और ये कंपोनेंट कितना Okay. हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, Yes, जहां sir. से एंगल होता है वो कॉस होता है, जो उसका परपेंडिकुलर है वो साइन होता है। इस एमजी ने यहाँ से एंगल बनाया, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एमजी कॉस थीटा। कितना हो जाएगा? एमजी कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एमजी साइन थीटा। F sin theta. होगा क्या नहीं? Yes, sir. अब ये ब्लॉक पे एक लगेगा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कहाँ लग जाएगा? ये लग जाएगा नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। ठीक है, नॉर्मल फोर्स जो होता है, अब वही है ना कि पता डिटेल में पढ़ते हैं ना, शुरुआत से पढ़ते तो चीजों का मजा अलग आता है। फिर अब डिटेल यहाँ पे उतना हो नहीं पा रहा है। नॉर्मल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। ये ब्लॉक जो है वो इस वेज के साथ यही तो कॉन्टेक्ट में है, ये जो मैंने डार्क कर दिया इतना सारा। तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर यही तो बनेगा जो ऊपर मैंने नॉर्मल यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ जो मैंने ये नॉर्मल की डायरेक्शन बनाई है यही तो आएगी। तो नॉर्मल जो है वो यहाँ पे किसके इक्वल आपको समझ में आ रहा है? देख लो आप, mg cos थीटा के इक्वल समझ में आ रहा है। तो यहाँ जो नॉर्मल बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, है ना। और पिछले वाले क्वेश्चन में नॉर्मल जो था वो कितना था? mg था। तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों नॉर्मल बदल गए ना, एक में cos आ गया, इसमें mg था। सर बात कुछ समझ में आई क्या हो रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Got it. हाँ, तो नॉर्मल का ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है mg cos थीटा, वो तो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। हम इस तरह से कॉन्फ़िगरेट उसको करके कंपोनेंट करेंगे, सब कुछ फाइंड करेंगे, आ जाएगा वहां। कर लोगे इतना? Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। Done, sir. डन। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स की। अब हम बात कर पाएंगे क्योंकि अब आपने फ्रिक्शन समझ लिया ना क्या होता है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो जैसे मान लो कि ये कोई ग्राउंड सरफेस है, क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं सीधा। ठीक है, ये कोई हमारे सामने ग्राउंड सरफेस है और इस ग्राउंड सरफेस पे कोई भी एक ये ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है। और मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का मास जो है मान लो ये ब्लॉक ए है, इस ब्लॉक ए का मास कितना है? मास ऑफ ए इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। और ये जो सरफेस है वो रफ सरफेस है। म्यू गिवन है आपको 0.1। म्यू यहाँ पे गिवन है 0.1। जब भी म्यू गिवन हो तो समझ जाना सरफेस रफ ही है, फ्रिक्शन लग ही रहा होगा, तभी तो म्यू दिया है, नहीं तो ऐसे फालतू में थोड़ी म्यू दिया होता। यहाँ पे रफ सरफेस है। अब ये बताना जरूरी नहीं है कि ये रफ सरफेस है, म्यू गिवन है, आप समझ गए कि रफ सरफेस है, उसमें क्या है। ठीक है। Yes, sir. तो ये हमारा हो गया म्यू इज इक्वल टू 0.1, ये गिवन है। अब यहाँ पे इस ब्लॉक पे कोई भी एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। मान लो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करा जा रहा है 1000 न्यूटन का। या 1000 बहुत ही ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा कम कर दो, 100 कर दो। चलो 100 न्यूटन का यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये ब्लॉक मूव करता हुआ गया आगे 5 मीटर, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है? फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। आपको यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क फाइंड करना है। कैसे करेंगे बताओ? बताइएगा Um, क्या क्या करेंगे इसमें? सोचो, कुछ चल रहा है दिमाग में?
चल रहा Yes, है sir. हाँ बताओ क्या चल रहा है दिमाग में? Sir, I'm not getting any ideas. कोई आइडिया नहीं है? अरे आपको वर्क निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला इसका तो आइडिया है क्या होता है? Force and into this ये cos तो आपको theta. पता है। अब फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क पूछा है ना, तो Yes, sir. फॉर्मूला जो फोर्स में हम रखेंगे वो क्या रखेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। स्मॉल एफ बना दो अब, डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। सही चल रहा है? Yes, sir. अब फ्रिक्शन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी तो यहाँ रख पाओगे, तो इसको साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, म्यू टू एन होता है। अब एन निकालना है तो इसका नीचे की तरफ क्या आएगा? टेन जी। ऊपर क्या आएगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल हमारा टेन जी के इक्वल हो गया। म्यू कितना है? 0.1 है। नॉर्मल कितना हो गया? 10 जी। जी का मतलब भी 10 होता है तो ये 100 हो गया। तो ये हमारा फाइनली 10 न्यूटन आ गया फ्रिक्शन फोर्स। आ गया? Yes, sir. अच्छा, इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? राइट में या लेफ्ट में? Left, sir. बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगा वो लेफ्ट में लगा। तो और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? राइट में या लेफ्ट में? Right, sir. राइट सर। तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है राइट साइड में। तो अब आप मुझे बता दो कि यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 0 या 180? 180, sir. 180। वेरी नाइस। तो एफ कितना हो गया हमारा? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया है? 5। गिवन है ना क्वेश्चन में, कहाँ गया? ये है। Yes, sir. 180 है तो cos 180 -1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 50 जूल आंसर। Got it, sir. अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही है क्या? क्या कि सर आप मुझे ये बताइए कि जब यहाँ पे 100 न्यूटन गिवन था तो आपने 10 न्यूटन फोर्स यहाँ पे क्यों रखा? आपने यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स क्यों नहीं रखा? ये चीज आई दिमाग में क्या? Sir, if it was friction force, right, sir? So, हाँ, ये 100 न्यूटन इसलिए नहीं रखा है क्योंकि वो तो अप्लाइड फोर्स है। हमें yes, sir. अप्लाइड फोर्स की वजह से थोड़ी वर्क निकालना है, हमें तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क निकालना है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक फोर्स की वजह से जो भी वर्क होता है वो अदर फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता। आपसे जिस फोर्स की वजह से वर्क पूछा गया है आप उसी फोर्स पे ध्यान दो, अदर फोर्सेस को भूल जाओ। यही तो बोला था मैंने। Yes, sir. वही हुआ है देखो इस क्वेश्चन में भी, मेरे Got ख्याल it, से sir. समझ में आ गया होगा। आ गया? Yes, sir. Yes, ओके, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। Done, sir. Done. Now, one more part you have to solve in this question. Find the work done by applied force. ये आपका काम है, अब ये मैं नहीं करूंगा, ये आप करके बताओ मुझे कितना है। Work done by applied force. Sir, we just have to put the 100 Newton and that's what will be minus 500. Give me the answer only. आप तो मुझे बस आंसर बताओ कितना है। Sir, is it minus 500, sir? माइनस क्यों आ रहा है? माइनस क्यों आ रहा है? माइनस किसकी वजह से आया? वजह बताइए एक बार। Cos theta, sir, 180 cos theta. थीटा 180 है क्या? Okay, no, it will be 90. हाँ 90 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जा रही हो। मतलब कैसे कैसे कर लेती है? कैसे हो जाता? मतलब 90 कहाँ दिखाई दे रहा है ये बताओ जरा, कहाँ से दिख रहा 90? मैंने आपसे क्या पूछा? अप्लाइड फोर्स की वजह से। मैंने आपसे पूछा क्या? मैंने आपसे क्या पूछा था? Applied force, sir. अप्लाइड फोर्स यहाँ पे कितना है? इस डायग्राम में आपको अप्लाइड फोर्स कितना दिख रहा है? 100. कहाँ लग रहा है? अरे राइट या लेफ्ट, कहाँ लग रहा है? Right, sir. राइट। और इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? Right. 90 कैसे हो गया? Uh,
थीटा कितना होगा I took the Newton and the upwards Newton. I took that and mistakenly अरे took it. that is not न्यूटन, that is normal. न्यूटन थोड़ी है, नॉर्मल है वो. Yes, sir. ये है न्यूटन, ये है न्यूटन, वो तो नॉर्मल है. ठीक है. Okay, sir. Got confused there. हाँ, कंफ्यूज मत हो. थीटा कितना होगा यहाँ पे बताइए तो फिर. अप्लाइड फोर्स के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 0, sir. 0 हो जाएगा. वेरी गुड. तो फिर अगर थीटा यहाँ पे 0 हो गया तो फिर हम अगर वर्क फाइंड करना चाहते हैं तो अप्लाइड फोर्स कितना है? 100 है. डिस्प्लेसमेंट तो 5 ही हो रहा है और cos थीटा 0, cos 0 1 होता है. आंसर कितना आएगा? 500 जूल आंसर आएगा. Yes, sir. अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, अब आपका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से. नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क कितना होगा बताओ. नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है? नॉर्मल फोर्स Sir, upward direction. अपवर्ड. तो कितना होगा वर्क बताओ अब तो मुझे. नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क कितना होगा? This will be cos 90. cos 90 बिल्कुल सही. और cos 90 कितना होता है? 0, sir. तो वर्क कितना होगा? 0. बस बात खत्म. समझ में आ गया? Yes, sir. वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. Okay. ठीक है. तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे क्योंकि अभी मेरी 9 बजे से फिर से क्लास है. ठीक है. Okay, sir. और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी से. ये जो भी लिखा है इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप. Done, sir. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. अगर इलास्टिसिटी आपके में आना है तो आप ज्वाइन कर लो क्लास को. अगर नहीं आना है तो फिर कोई बात. ठीक है. ओके. Sure, sir. Sure. ओके. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय. Thank you, sir.